Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Today we are going to discuss the Factory Act 1948 Part 4, and this is the last part of the Factory Act 1948. Now start with the welfare provision. Today in a present session we are going to discuss about the welfare provision. Welfare provision हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडियन द फैक्ट्री एक्ट 1948 में हेल्थ से रिलेटेड सेफ्टी से रिलेटेड हमने प्रोविजन पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेलफेयर प्रोविजन. हेल्थ और सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेलफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीनों प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फैक्ट्री एक्ट 1948 में. और जो दिस वन द टुडे टॉपिक दैट इज़ अ वेलफेयर प्रोविज़न, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस क्वेश्चन was asked in the last year question paper. What do you mean by the welfare? Welfare means kalyan, means the well-being of the worker. This welfare provision is basically start from the section 42 50. Section 42 से लेकर 50 के बीच में इंडियन द फैक्ट्री एक्ट 1948 में सेक्शन 42 से लेकर 50 के बीच में वेलफेयर प्रोविजन बताए गए हैं. द चैप्टर 5 देयर आर द नंबर ऑफ प्रोविजन इन द फैक्ट्री. चैप्टर 5 में इसके बारे में डिस्क्लोज किया हुआ है कि व्हाट आर द वेलफेयर प्रोविजन अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948. तो व्हाट आर दीज वेलफेयर प्रोविजन विच आर प्रोवाइडेड फॉर द वर्कर. कौन कौन से वेलफेयर प्रोविजन है, कौन से वेलबींग फैक्टर्स हैं जो वर्कर को प्रोवाइडेड होते हैं द फैक्ट्री एक्ट 1948 में. इन वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज अ वॉशिंग फैसिलिटी. This washing facility is explained under the section 42 in the Factory Act 1948 sorry. तो वॉशिंग फैसिलिटी के बारे में सेक्शन 42 में बताया गया है. देयर शुड बी वॉशिंग फैसिलिटी in every factory for the worker, separate for male and female worker, properly screened, conveniently accessible and shall be kept clean. Washing facility means वर्कर को वर्क की हेल्थ एंड सेफ्टी के अलावा वेलफेयर में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वॉशिंग की. द वर्कर कैन वॉश देयर क्लोथ्स, their dress, and this facility is separate for the male as well as the female worker, and this is basically a very properly screened kind of facility which is provided to the worker, and this is very conveniently accessible. The worker can easily access this service, and this equipment it shall be kept very clean, so worker can wash their clothes and their dress even after the work schedule. So this is a very important facility which is given to the worker. Welfare washing की facility उन्हें मिलती है. तो in any factory adequate and the suitable facility shall be provided and maintained for the use of the worker, and the separate and adequate screen facility is provided for the male and female worker. So this is the most important. Now the second facility for the storing and drying of the clothes. दिस फैसिलिटी का मतलब ये हुआ कि स्टोरिंग मीन्स क्लोथ को रखने की तथा क्लोथ को ड्राई करने की आफ्टर द वॉशिंग फैसिलिटी. दिस इज द सेकेंड फैसिलिटी विच इज गिवन अंडर द वेलफेयर प्रोविजन टू द वर्कर. दिस facility is given explained under the section 43, and what it says, there must be facilities so that the worker can place their clothes not worn ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जो भी ड्रेस वर्कर ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं पहनी है, सो वो उस ड्रेस को प्रॉपरली उसको प्लेस कर सकता है किसी जगह पर, और उसको दे शुड बी फैसिलिटी टू वर्कर ड्राई देयर वेट क्लोथ. और साथ ही साथ वो अपनी उस क्लोथ्स को कहीं भी स्टोर कर सकता है क्योंकि वो ड्रेस को नहीं पहन रहा है. and he can also dry the cloth which he has washed in the washing facility. तो जो क्लोथ उसके पास वेट है मीन गीले हैं उनको उन ड्रेस को वो ड्राई करने के लिए फैसिलिटी ले सकता है. मीन्स द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द वर्कर द ड्राइंग फैसिलिटी. तो ये ड्रायर फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है वर्कर को. दिस इज वन ऑफ द फैसिलिटी दैट इज गिवन अंडर द वेलफेयर प्रोविजन. Now moving toward the facility for the sitting. As you know that nobody can work by standing alone, standing in a position. So there must be some facility of sitting arrangement should be given for the worker so they can comfortably sit
and can work their work comfortably. So we can say the suitable arrangement for the sitting shall be provided and maintained for the all worker obliged to work in a standing position. And this is the facility is maintained that in any factory suitable arrangement for the sitting shall be provided, and it maintained for all the worker who are obliged to work in a standing position. So the worker may take advantages of any opportunity for the rest which may occur in the course of action. As you know that while working, the worker cannot be able to stand for a long period of time. So if he want take rest, so he can take this facility, और तो उसे sitting arrangement की facility मिल जाती है. तो in during the work schedule they can sit and they can take rest and then do the work. If the worker can do their work by sitting, there should be sitting arrangement for the worker. The worker can also do their work by by properly by work in a sitting position. So he can also work by the sitting position. This is explained under the section 44. Now the another facility, that is a welfare facility, that is the first aid appliances. फर्स्ट एड मीन्स होता है कि जब भी आपको, एज यू नो दैट अंडर द एक्ट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट एड अप्लायंसेस आर ऑब्लिगेटरी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको फर्स्ट एड की फैसिलिटी मिलनी चाहिए. एज यू नो दैट वेन एवर द एनी इंसिडेंट हैपन इन द कंपनी, तो देयर मस्ट बी द फर्स्ट एड फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर. तो कोई भी अगर कोई भी इंसिडेंट वर्क कंपनी में होता है तो सबसे पहले उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, देन द पर्सन कैन हॉस्पिटलाइज्ड. दिस मीन्स दैट उसके पास फर्स्ट एड की फैसिलिटी वर्कर को मिलनी बहुत ज़रूरी है. एंड दिस शुड बी एटलीस्ट वन फर्स्ट एड बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कर. इट मीन्स दैट ओवर 150 वर्कर वन फर्स्ट एड बॉक्स विल बी प्रोवाइडेड. 150 मीन्स 150 वर्कर में एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलेगा. So this is the facility is provided when the 150 worker is available in the company. If the 150 are available, then the one first aid box will be given to the worker. And it should have the prescribed contain, means the first aid box में prescribed contain होंगी like Dettol, medicines, and the number of contain that prescribed under the act is given under this फर्स्ट एड अप्लायंसेस टू द वर्कर. तो वर्कर को ये प्रिस्क्राइब कंटेंट मिलेंगे जो फर्स्ट एड अप्लायंसेस में वर्कर को दिए गए हैं. A responsible person should hold a certificate on the first aid treatment, and the ambulance room should be there if the number of worker is more than the 500. It means ये हुआ कि जब भी 150 जितने भी अगर 500 वर्कर अगर किसी कंपनी में अवेलेबल है, तो 500 वर्कर होने पर उस कंपनी में वर्कर को एम्बुलेंस रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. इट मीन्स इफ द वर्कर इज मोर देन द 500 और द 500, देन द एम्बुलेंस रूम विल बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर. दिस इज this section is this first aid appliances explained under the section 45. Now moving towards the next facility that is given under the welfare facility, the Factory Act 1948, that is a canteen facility. कैंटीन फैसिलिटी का मतलब क्या है? एज यू नो दैट कैंटीन इज मीन वेयर द फूड इज अवेलेबल. तो जहाँ पर फूड अवेलेबल है उसे कैंटीन. इन एनी यू कैन से दैट इफ द नंबर ऑफ वर्कर इज मोर देन द 250 फैक्ट्री. अगर जहाँ पर भी कैंटीन फैसिलिटी उसी फैक्ट्री में अवेलेबल होगी जहाँ पर वर्कर 250 से ज़्यादा होगा. इट मीन्स व्हेन द वर्कर इज मोर देन द 250, जहाँ वर्कर की जो स्ट्रेंथ है वो 250 होगी, देन द गवर्नमेंट मे रूल फॉर द कैंटीन. तभी कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी. इट मीन्स इफ द वर्कर इज 240 और 230 और बिलो देन 250, देन द कैंटीन फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन दैट कंडीशन. तो कैंटीन फैसिलिटी अवेल करने के लिए 250 वर्कर किसी भी फैक्ट्री में होना बहुत जरूरी है. देन दिस इज अ कंपल्सरी कंडीशन दैट 250 वर्कर will be available, then only the canteen facility will be given to the worker. The government make rule regarding the food stuff. कैंटीन में फूड स्टफ होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, फर्नीचर होंगे, इक्विपमेंट होंगे कैंटीन से रिलेटेड. दिस इज एक्सप्लेन अंडर द कैंटीन फैसिलिटी. वेलफेयर फैसिलिटी बताया हुआ है. तो कैंटीन की फैसिलिटी वर्कर को मिलेगी. दिस इज वन ऑफ द वेलफेयर फैसिलिटी विच इज गिवन टू द वर्कर. Now the second last facility, that is a shelter, restroom and lunchroom, that explained under the section 47.
तो ये क्या होता है, व्हेन द 150 वर्कर, जब भी किसी भी कंपनी में 150 वर्कर आर वर्किंग, देयर शुड बी द रेस्ट रूम लंच रूम फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर रेस्ट रूम फैसिलिटी अगर किसी कंपनी को अवेल करनी है, किसी वर्कर को लेनी है, तो वहाँ मिनिमम 150 वर्कर होने बहुत ज़रूरी है। इफ़ द 150 वर्कर इज present, then the restroom lunch room facility will be provided to the worker. Such place should be having a drinking water facility. ऐसे रेस्ट रूम, लंच रूम और शेल्टर रूम में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी वर्कर के लिए। तो ये सब फैसिलिटी जो होगी, इसमें 150 वर्कर होने बहुत ज़रूरी है, तभी हम शेल्टर और रूम रेस्ट रूम की फैसिलिटी वर्कर को मिलेगी। तो वर्कर की स्ट्रेंथ 150 होनी चाहिए, तभी शेल्टर रेस्ट रूम की फैसिलिटी मिलेगी। दिस एक्सप्लेन अंडर द सेक्शन 47। Now moving to the crutches. Crutches basically, crutches you can see here, the small children are studying and playing over here. And this pictures mean that if the number of women's worker is more than the 30, तो women's की जो भी as the you know that the working women have their children, तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी बच्चे अगर 6 साल से कम है, मीन्स उनकी जो एज है 6 ईयर से कम है, उन बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी केयर टेकर के लिए उनको क्रचेस फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो अगर किसी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा वुमेन्स है, 30 और 30 से ज़्यादा वुमेन है, तभी वो क्रचेस फैसिलिटी फैक्ट्री अपने वर्कर को प्रोवाइड करेगी। अगर 30 वुमेन से अगर वुमेन्स कम हैं तो क्रचेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इट मीन्स उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनको एज अ प्ले स्कूल, एज अ आंगनबाड़ी टाइप फैसिलिटी, उन्हें प्ले की एक्टिविटी, उनके बच्चों की केयर टेकिंग एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं होगी। तो दिस इज अ क्रचेस एक्टिविटी विच इज गिवन टू द वर्किंग वुमेन चिल्ड्रन। तो वर्किंग वुमेन के चिल्ड्रन को जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, क्रचेस फैसिलिटी होती है। इस क्रचेस में उन बच्चों को एजुकेशन, प्ले स्कूल, प्लेइंग टाइप की एक्टिविटी कराई जाती है, ताकि बच्चे जो हो वो इंगेज रहे व्हेन द मदर देयर वर्क, डू देयर वर्क। तो जो मम्मी, उनकी जो मदर है वो काम कर रही है, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम द चिल्ड्रन कैन गेट इंगेज in this facility known as crutches facility. And for this facility, the strength of the woman should be more than the 30. Yeah, this is the crutches facility section 48 में इसका explain किया है। Now moving toward the last facility, that is a welfare officer facility, that's explained under the section 49. इफ द वर्कर इज 500, अगर किसी फैक्ट्री में 500 वर्कर है और उससे ज़्यादा वर्कर है, इट मीन्स द वर्कर इज 500 और मोर, देयर शुड बी वेलफेयर फैसिलिटी टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। तो वर्कर की वेलफेयर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए वर्कर की स्ट्रेंथ 500 होनी चाहिए। तो वेलफेयर ऑफिसर तभी अवेल होगा। एक वेलफेयर ऑफिसर 500 वर्कर के लिए रिक्रूट किया जाएगा। तो इट मीन्स दैट है, अगर वेलफेयर ऑफिसर किसी फैक्ट्री में होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कर कम से कम 500 और ज़्यादा होने चाहिए, तभी वेलफेयर ऑफिसर प्रोवाइड किया जाएगा वर्कर की वेलफेयर एक्टिविटी के लिए। Now, in a nutshell or in a short, we can say that for the crutches facility, the 30 and more women should be required to avail this kind of facility. And for the restroom, shelter and restroom, 150 workmen should be required for this kind of facility. For the cool water and drinking facility, 250 and more worker required. And for the canteen facility, 250 worker, more than 250 worker will be provided. Then only the canteen facility will be provided to the worker. For the ambulance kind of facility, welfare activity, doctor, nurse and dress room compounder, over and all workmen should be more than the 500. Then on the ambulance facility will be provided to the worker. And for to avail the welfare officer facility, more than the 500 worker will be required. This is all about the welfare facility which is given under the Factory Act 1948. And now moving towards, this is the last, that is the power to make rules. तो यहाँ पर एक important ये भी है कि पावर मिलती है अंडर द सेक्शन वर्कर को, कि वो पावर अपनी रूल्स बना सकते हैं। एंड दे ऑल्सो भी कम्स अंडर द वेलफेयर एक्टिविटी। इन वेलफेयर एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन्स। कुछ फैसिलिटीज, कुछ एम्प्लॉयमेंट्स, एज यू नो दैट वुमेन्स एंड मैंस बोथ आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। एंड कुछ वुमेन्स से रिलेटेड कुछ एम्प्लॉयमेंट्स कंडीशन होती है जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में एक्सप्लेन किया है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट आर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ working women
provision explained under the Factory Act. तो women employment of the work women's के बारे में क्या बताया गया है फैक्ट्री एक्ट 1948 में. एंड दिस एज यू नो दैट इन द company or in a factory, the adult male and female both work, and if their work or their employment condition are same, and the rules and regulation for the same for the male and female worker, but there are some provision that is especially given to the working male, working female, and which apply to only a female worker. This facility is basically a employment of women's facility. तो ये बेसिकली वैसे जितनी भी मेल्स वर्कर होते हैं उन्हीं की तरह फीमेल्स वर्कर को भी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, बट कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो फैसिलिटी स्पेशली फीमेल वर्कर को प्रोवाइडेड होती है. व्हाट आर दिस प्रोविजन और व्हाट आर द फैसिलिटी? दैट इज अ वर्क ऑन और नियर द मशीनरी इन अ मोशन. As you know that where in any factory it is become necessary to examine any part of the machinery. Machine की हर एक part को examine करना, that is a duty of the worker, either it is a male or a female. When the machinery is motion, and especially when the मशीनरी इन मोशन, जब भी कोई भी मशीनरी वर्किंग कंडीशन में मोशन में है, तो ऐसी मशीनरी का जो भी एग्जामिनेशन होगा, दैट एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड बाय द मेल वर्कर, नॉट बाय द फीमेल वर्कर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन. तो वर्किंग वुमेन्स कभी भी मोशन वाली मशीनरी में वर्क नहीं करेगी. तो यहाँ वो उसको रेस्ट्रिक्शन होता है कि ओनली द मेल वर्कर विल वर्क when the machinery is motion. This is the most important condition, which is most important facility which is given to the women in the factory. Now the second facility or the second employment condition for the women, that is a exception kind of condition that is provided to the working woman, that is a provision of the employment near the cotton opener. तो जब भी कॉटन ओपनर काइंड ऑफ एक्टिविटी होगी वहाँ पर भी वुमेन्स को वर्क रेस्ट्रिक्टेड होता है. मीन्स वुमेन वहाँ कॉटन ओपनिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगी, सिर्फ मेल वर्कर ही इस काम को करेंगे. और नाउ द थर्ड इज द क्रेचेस फैसिलिटी. इन एवरी फैक्ट्री देर इन अगर जिस भी फैक्ट्री में 30 और 30 से ज़्यादा वुमेन्स होगी वहीं पर क्रेचेस फैसिलिटी अवेलेबल होगी उनके चिल्ड्रन के लिए. और चिल्ड्रन जो होंगे अंडर द 6 ईयर एज, उनकी एज जो होनी चाहिए 6 साल से कम होनी चाहिए. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी विच इज गिवन टू द employed women, so working women. Now the last facility, that is a working hours. वर्किंग वुमेन्स के लिए कुछ वर्किंग आवर्स होते हैं, दैट इज डिस्क्राइब अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948. वर्किंग आवर्स 51 to 54 में बताया गया है. अ वुमेन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर इन अ वीक, एनी वीक. तो जो वर्किंग वुमेन्स होगी उनके लिए कंडीशन है कि 48 आवर्स से ज़्यादा वो कभी भी किसी वीक में 48 से आवर्स कभी वर्क ज़्यादा नहीं करेगी. और 9 आवर्स मतलब 9 घंटे किसी दिन में से ज़्यादा नहीं करेगी. मीन्स उसका जो वर्किंग आवर्स होना चाहिए वो 9 आवर्स होना चाहिए, और वीक में उसका 40 आवर्स ही रहना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी विच इज़ गिवन. और वर्किंग आवर्स जो है वो वुमेन को बताए गए कि उनको 48 वर्क ही करेंगी और 9 आवर्स इन अ डे करेंगी. A woman shall be required and allowed to work in a factory only between the hours of. This is the most important one. जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए जो वर्किंग जो टाइमिंग है वो 6 AM से लेकर 7 PM के बीच का ही होगा. इसके बाद और इससे पहले कोई आप टाइमिंग आप नहीं दे सकते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी विच इज गिवन टू द वर्किंग वुमेन. एंड दिस इज द फैसिलिटी जो कि उनको फैसिलिटी वर्किंग वुमेन को एज एम्प्लॉयड फैक्ट्री एक्ट में बताई गई है. डेंजरस ऑपरेशन में भी वर्किंग वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता है. मीन्स वर्किंग वुमेन डेंजरस ऑपरेशन में वर्क नहीं करेगी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी विच इज गिवन टू द वुमेन्स. एंड जो कोई भी पॉइजनली और ये कैसे से द पॉइजन और द डिजीज काइंड ऑफ एक्टिविटी which is conducted in the factory, अगर कोई रिस्क और हाई रिस्क और इंजरी और पॉइजन काइंड ऑफ एक्टिविटी है जो इंजरी जो डेंजरस होती है उसमें भी वुमेन्स को अलाउड नहीं है. द prohibition or the restriction of the employment of the work women's in that operation. तो यहाँ पर restriction होता है women's का. Now moving towards the employment of the young person. तो अब जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट यंग वुमेन्स का पढ़ा, यहाँ कुछ यंग पर्सन्स के लिए भी कुछ टर्म्स और कंडीशन फैक्ट्री एक्ट 1948 में गिवन है. द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यंग चिल्ड्रन. यंग चिल्ड्रंस के लिए भी कुछ प्रोविजन प्रोवाइडेड एज
द प्रोविजन विच इज गिवन अंडर द विच गिवन फॉर द वुमेन्स के लिए जैसे फैसिलिटी अवेलेबल वैसे यंग चिल्ड्रंस के लिए भी। तो यंग चिल्ड्रंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नो चाइल्ड हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज ईयर 14 ईयर, जो 14 साल से कम है या 14 साल ने अटेंड नहीं किए, उनको ऐसे बच्चों को हम कभी काम में या किसी फैक्ट्री में वर्क नहीं किएगा। इट मीन्स ये बेसिकली माइनर होते हैं एंड माइनर आर नॉट अलाउडेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री। The second employment facility which is given for the children, that is अगर कोई children है जिसने 14 ईयर एजेस कंप्लीट कर चुका है और the comes under the adolescent phase, the child may be allowed to work। तो अगर 14 साल से ज़्यादा कम एज का बच्चा है तो वो अलाउड है, बट द कंडीशन इज दैट दे हैव टू बी प्रेजेंट द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। उसको अपना फिटनेस का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा टू फॉर द सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। उसको उस वर्क के से रिलेटेड अपना फिटनेस एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि वो इस काम को कर सकता है और वो फिट है इस काम को करने के लिए। और सेकेंड कंडीशन ये होती है कि सच एडोसेलेंट जो चाइल्ड है जिसने 14 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है, ही गिविंग अ टोकन, गिविंग रेफरेंसेस टू सर्टिफिकेट। उसको टोकन मिलेगा, मीन्स टाइम पीरियड मिलेगा कि वो इस टाइम पीरियड में इस काम को कर सकता है उस आपके सर्टिफिकेट की बेसिस पर। ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस क्या होता है? इट्स अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू ए यंग पर्सन बाय द सर्टिफाइंग सर्जन आफ्टर एग्जामिनिंग हिम एंड सेटिंग हिम fitness for the work in a factory. This is a certificate will be provided by the surgeon, and after examining the child that he is capable enough to do the work in a factory, तो उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी कैपेसिटी के बारे में और उसकी फिटनेस के बारे में डॉक्टर एग्जामिन करेगा, और अगर वो फिट है चाइल्ड देन वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस प्रोवाइड करेगा टू डू द टास्क दैट इज प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री। जो सर्टिफिकेट होता है बेसिकली दिस इज वैलिड फॉर द 12 month। Now this is the all about today's session. We have covered the welfare provision and the employment of the woman as well as the employment of the young person. Now this is a summary of the Factory Act 1948. Today we have completed uh, unit 3rd, and in this unit 3rd, the Factory Act 1948, we have covered the following things. The applicability आप पढ़ेंगे, then you have health provision, registration, safety measures, welfare measures, working measures, annual leave with wages, employment of the young person, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पेनल्टीज एंड द ऑफेंसेस। तो बेसिकली अगर फैक्ट्री एक्ट की जो भी रूल्स एंड कंडीशन है एंड इफ द प्रोविजन फॉलो नहीं होते हैं तो देन द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 2 years मीन्स 2 साल की आपको जेल हो जाएगी अगर आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, एज वेल एज द फाइन अप टू द 1 lakh और बोथ। तो आपको 2 lakh की imprisonment, you can go for the imprisonment of the 2 years if you not follow the rules and regulation of the Factory Act, and you also get fine of 1 lakh rupees or both। एंड अनदर इज दैट अगर आपने कंटिन्यू इस आप अपनी मिस्टेक को, अगर फैक्ट्री है जो फैक्ट्री एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर काइंड्स ऑफ मेजर्स जो है फैसिलिटी अपने वर्कर को प्रोवाइड नहीं करती है, दिस फैक्ट्री विल बी फाइन बाय द 1000 रुपीज पर डे अगर वो अपनी इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करती है, मीन्स वो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है इवन आफ्टर द रिमाइंडर भी। So this is all the imprisonment or the penalty you have mentioned here. You can go through this one by one, and this is all about the Factory Act. And thank you, my dear student. Before ending the topic, I would like to give you the assignment. That is assignment number 5th, and this assignment is basically you have to mention the enlist the हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजन ऑफ द वर्कर अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। आपको बताना है कि आपको वो सब फैक्ट्री एक्ट 1948 में हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर से प्रोविजन बताने हैं विच आई हैव मेंशन इन द प्रीवियस सेशन। जो मैंने आपको मेंशन किया आपको उनको पॉइंट आउट करना है, इनको आपको एग्जांपल के थ्रू बताना है। लाइक आई हैव मेंशन इन अ वेलफेयर प्रोविजन में जैसे मैंने डायग्राम और पिक्स का यूज करके पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको डिपिक्ट किया है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज। इन सेम मैनर यू हैव टू मेंशन हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर को दोबारा बताना, बट यू हैव टू यूज द अनदर काइंड ऑफ पिक्स। आपको ये इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके अपने आपको यूज करना है। आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल, आप कोई हेल्थ नेट का यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आ भी चुका है, तो देन यू हैव टू बी ऑल्सो
prepare that question. The second question I have given in the today assignment, that is a डिफाइन द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1940। आपको फैक्ट्री को डिफाइन करना है कि फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री को कैसे डिफाइन किया है, इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है इन ए सिंपलर और ना वेरी क्रिएटिव मैनर आपको मुझे एक्सप्लेन करनी है। दिस इज ऑल अबाउट आपके लिए। इसके लिए मैं आपको गूगल लिंक प्रोवाइड करूंगी एंड एज वेल एज यू कैन, इफ द स्टूडेंट हैव फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल सबमिटिंग द असाइनमेंट इन अ गूगल फॉर्म, and then I will share my email ID too. So in the link in the description box, you can go through this below description box. And this is all about the assignment part. Thank you, my dear student.